Good morning, class. Welcome you all to the SST class. In the previous class, we have started Geography chapter 2nd, that is land, soil, and water resources. In that class, we have read about land, soil, and water are the important resources that occurs on the earth. In the then first, we have discussed about land. It is one of the important natural resource because all human beings, plants, and animals exist on the land. Okay, and all the basic needs are satisfied from the land, such as food, shelter. Okay, land covers about 29% of the earth's surface, and but some part of the land are covered with desert, mountains, ice, so it is unsuitable for human population. That's why human population is unevenly distributed. The plains and the river valleys are densely populated, while the uh, mountain regions which have inappropriate climate has sparsely populated. You can see the images. There plains um, which has three kinds of the landform: plains, mountains, and plateaus. Plains are generally fertile land, so they are densely populated. Mountain regions are very डिफिकल्ट टेरेंस मतलब स्लोप्स होती हैं जहाँ पे इसलिए इट हैज़ लो पॉपुलेशन, वेयर एज द प्लेचूज आर moderate population as it contains some of the minerals. So then we have discussed about the land use, how lands are used for different purposes: agriculture, forestry, mining, construction activities. Okay. Then on the basis of the land use, lands are classified into different parts: arable land, that is used for cultivation; pasture land, that is used for grazing livestock; fallow land, that is left unused for agriculture but can be cultivated later; cultivable wasteland, the land can be cultivated but remain fallow for the more than 5 years; forest land and non-agriculture lands. Okay. But due to the increasing rate of the population, to satisfy the needs of the people, land are forests and the jungles are being cleared. More farmlands are being overused in order to produce more and more crops. With this causes the land degradation. Landslides and soil erosion are desertification of the which poses great threat to the land degradation and disturbs the environment. So there is various steps that have been taken to conserve the land and maintain the ecological balance, such as land reclamation that I have explained, covering the land that is of the sea with more and more cement, clay, so that to rise up to the normal land surface; afforestation, growing more and more trees, and regulating the excessive use of fertilizers and pesticides, and regulating the activities like grazing and mining. Clear? At the last, we have discussed about landslide. Landslide is one of the natural disasters in which the heavy piece of the rocks of the soil moves down the hills due to the force of the gravity. They are commonly occur due to the natural disaster like earthquake, floods, or volcanoes, and it can cause also by the human activities such as blasting, construction activities, or deforestation. As the trees of the whole do not maintain their hold on the soil, so they on the mountain slopes the soil becomes unsuitable for the so the soil becomes unstable and it causes the lot of landslide. This situation can become worse during the periods of the heavy rain. Landslides are more common in the hilly regions in the monsoon season. One of the example we have studied recent times in 2013 in Uttarakhand in India, a landslide has occurred which has caused loss nearly 6,000 loss of lives
and nearly 4,000 villages were get affected. Up to that topic we have discussed. Now we will study the other important natural resource, that is soil. The topmost layer of the earth crust is known as soil, is made up of the thin layer of is known as soil. ठीक है, जो हम अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, टॉप पर लेयर, वो किसकी बनी होती है? सॉइल की. सॉइल इज द फाइन मिक्सचर ऑफ द मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ इट इज फॉर्म्ड over the thousands of the years as the rock broke down into the smaller and smaller pieces by the agents of the erosion, water, wind and glacier. Soil is vital source as it needs to grow crop. ठीक है, जो अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर होती है that is made up of the thin layer that is known as soil. सॉइल में काफ़ी मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, डेड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं जो थाउजेंड ऑफ ईयर्स से के बाद बनते हैं. ठीक है, क्योंकि सॉइल को बनने में इतना टाइम क्यों लगता है? क्योंकि रॉक्स धीरे धीरे ब्रेक डाउन, स्मॉल पीसेस में ब्रेक होते हैं. किससे ब्रेक होते हैं? विंड के इरोजन के एजेंट से, सच एज वाटर, विंड, ग्लेशियर. ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट सोर्स है क्योंकि ये प्लांट्स की प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप्स को उगाने के लिए सॉइल की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ द सॉइल बेस्ड ऑन दिस टेक्सचर, कंटेंट, फर्टिलिटी. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की सॉइल है, कलर के बेस पे. ठीक है, टेक्सचर, किस तरह की लैंड का टेक्सचर है, शेप है, कंटेंट्स, क्या मटेरियल्स हैं, उसके बेस पे डिफरेंट टाइप्स की सॉइल मिलती है. फर्टिलिटी क्या है, कितनी उसके पास पावर है क्रॉप्स ग्रो करने की, उसके बेस पे. फैक्टर दैट डिटरमिन द नेचर ऑफ सॉइल, किस तरह की सॉइल है, उसमें कौन से टॉपोग्राफी आ जाती है, किस तरह की लैंड की शेप है, किस तरह की उसकी क्या कहते हैं ओवरऑल सरफेस है. ठीक है, क्लाइमेट किस तरह का है, किस तरह की कॉम्पोजिशन है, पेरेंट रॉक, किस तरह के रॉक्स उसके अंदर है, मॉइस्चर है. ठीक है, किस तरह की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ऑर्गेनिक मैटर की क्या नेचर है. ठीक है, कितना टाइम लेती है सॉइल की फॉर्मेशन के लिए, उसकी फॉर्मेशन. ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है, जो सॉइल की नेचर को डिटर्मिन करती है. द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज डिटर्मिन्ड बाय कंटेंट ऑफ द मिनरल्स, कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं उसमें, कौन से ऑर्गेनिक मैटर हैं, उस पर भी डिपेंड करती है. एंड द कैपेसिटी टू होल्ड रिटेन द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, कितना वाटर वो अपने अंदर रिटेन कर सकते, होल्ड कर सकते हैं, उस पर फर्टिलिटी इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. ठीक है, नेक्स्ट सॉइल प्रोफाइल. इसमें हम सॉइल की डायग्राम बनी हुई है, सॉइल में कौन सी लेयर्स हैं, इसमें डिटेल में ही आपको क्वेश्चन भी है. क्वेश्चन आई थिंक लॉन्ग क्वेश्चन 4 है, डिस्क्राइब द सॉइल प्रोफाइल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. इन दैट यू हैव टू ड्रॉ दैट दिस डायग्राम. सी, सॉइल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स. सॉइल डिफरेंट लेयर्स की बनी हुई है या हॉरिजन्स की बनी हुई है. ईच लेयर हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सभी लेयर्स की अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, जो वर्टिकल अरेंजमेंट है, वर्टिकल मतलब एक दूसरे के ऊपर जो लेयर्स का अरेंजमेंट है सॉइल में. ठीक है, दैट इन ए सेक्शन ऑफ द सॉइल इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल. ठीक है, नाउ सी, फर्स्ट लेयर इज सरफेस लेयर, दैट इज ओ. सी अबव जहाँ पे ग्रीन लीव्स ग्रो हुए हैं, दैट इज सरफेस लेयर या ऑर्गेनिक. दिस इज द थिन बट द हाईली फर्टाइल लेयर कंसिस्ट ऑफ द लीव्स, लिटर एंड ह्यूमस डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर. इसमें सबसे ब्रीक लेयर, मतलब पतली लेयर होती है, फर्टाइल लेयर है जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स की प्रोडक्शन या प्लांट्स की प्रोडक्शन होती है. ठीक है, लीव्स होते हैं, छोटे ट्रीज वगैरह उगाए जाते हैं, या ह्यूमस डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है. ठीक है, उसके नीचे टॉप सॉइल. ठीक है, ये जिसमें दिखा हुआ डार्क कलर में होती है ये. ठीक है, और ये भी रिच है, रिच इन ह्यूमस, इसमें भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक बहुत अच्छा होता है, और ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी लेयर मानी जाती है टॉप सॉइल. नेक्स्ट कम्स दी सबसॉइल, भी थोड़ी लाइट कलर में है. ठीक है, सबसॉइल. दिस लेयर इज कंसिस्ट ऑफ द सैंड, सिल्ट एंड क्ले, हैज़ ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. इसमें सैंड मतलब सूखी मिट्टी या थोड़ी गीली मिट्टी इस तरह की होती है, और इसमें ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू दी सरफेस लेयर या टॉप सॉइल के. फिर आ जाता है पेरेंट मटेरियल. सी पार्ट में थोड़ा क्या कहते हैं लाइट येलोइश कलर में, क्रीम से पोर्शन में. दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ द लार्ज पीसेस ऑफ द रॉक्स
दिस इज़ द पेरेंट रॉक फ्रॉम विच द टॉप सॉइल एंड सब सॉइल हैव बीन फॉर्म्ड, इट डज नॉट हैव ह्यूमस। इसमें छोटे छोटे पीसीस होते हैं रॉक्स के, ठीक है। ये मेन एक रॉक्स हैं जहाँ से टॉप सॉइल और सब सॉइल की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। और इसमें बिल्कुल ह्यूमस नहीं होता, कोई डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता। और नीचे है बेड रॉक, ये दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ सॉलिड रॉक्स, इसमें सॉलिड रॉक्स ही होते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं की जाती, सिर्फ रॉक्स ही रॉक्स होते हैं, ठीक है। नीचे बिल्कुल राइट देखो रेड आर लिखा हुआ, बेड रॉक्स सिर्फ स्टोन्स ही आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, ठीक है। नाउ सी इन फोकस सॉइल्स ऑफ इंडिया, कौन सी सॉइल इंडिया में पाई जाती हैं। इसमें एक मैप भी दिया हुआ है, इसमें हम देखते हैं कौन सी सॉइल्स हैं। बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स, मतलब सॉइल्स की प्रॉपर्टीज़ के बेस पे सॉइल्स को हमने डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई किए। यहाँ पे कुछ मेन टाइप्स ऑफ द सॉइल फाउंड इन इंडिया, ठीक है, उनकी फ्यू करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है एलुवियल सॉइल, दिस इज़ द रिच एंड फर्टाइल सॉइल आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द मोस्ट टाइप्स ऑफ द क्रॉप। ये सबसे अच्छी रिचेस्ट फर्टाइल सॉइल है, जो मतलब उपजाऊ सॉइल, मतलब सबसे ज़्यादा कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स के लिए मेन यूज़ की जाती है, दैट इज़ एलुवियल सॉइल, ठीक है। इसमें आप देखो मैप में आपको ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रही है, ये एलुवियल सॉइल का रीजन है जहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, थोड़ा सा बंगाल का पोर्शन, ये क्या कहता है सारा एलुवियल सॉइल में है, ठीक है। नेक्स्ट इज द ब्लैक सॉइल, दिस सॉइल इज यूजली फाउंड इन अराउंड द एरियाज विद कवर्ड विद लावा मिलियंस ऑफ द ईयर्स अगो, ठीक है, जहाँ पे लावा पाया जाता है, जैसे डेड बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक मैटर मिलियंस ऑफ ईयर्स से दबा होता है सॉइल के नीचे, वहाँ पे जो सॉइल होती है वो कौन सी होती है, ब्लैक सॉइल। इट इज़ रिच इन आयरन, आयरन इसमें सबसे ज़्यादा आयरन का कंटेंट होता है, विच कॉजेज देम टू विथस्टैंड विंड्स को भी हैंडल कर सकता है, अगर विंड्स ब्लो करती हैं तो उससे भी उसकी इतनी पावर होती है, ठीक है। वाटर या विंड इरोजन को भी अपने क्या कहते हैं कंट्रोल में कर सकता है। इट इज़ आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन, इसलिए यहाँ पे कॉटन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है इस सॉइल में। सी ब्लैक सॉइल आपको दिखेगी जहाँ पे क्या कहते हैं ग्रे कलर में सॉइल है, यहाँ सेंटर में, यहाँ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, इधर वाले पोर्शन में आपको दिख सकती है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा साउदर्न पार्ट में भी है, इधर आप आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा वाली साइड में थोड़ा कह सकते हो, यहाँ पे जहाँ ग्रे कलर का पोर्शन है। नेक्स्ट इज द रेड सॉइल, दिस इज सॉइल इज रेड इन कलर, ये रेड कलर में होती है ड्यू टू द हाई कंटेंट ऑफ आयरन, यहाँ पे आयरन का कंटेंट होता है, इसलिए से दिस सॉइल मेनली इन द रेड कलर। बीइंग लो इन न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस, रेड सॉइल इज डिफिकल्ट टू कल्टिवेट, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स या ह्यूमस बिल्कुल नहीं होता, डेड डिकेइंग ऑर्गेन 9 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए इस सॉइल पे कोई कल्टीवेशन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग मिलेट्स, ठीक है, ये जौ वगैरह ग्रो करने, कॉटन वगैरह या वीट या अनियंस, पोटैटो के लिए सिर्फ ये सॉइल यूज़ की जाती है उन्हें उगाने के लिए, ठीक है। देखो रेड सॉइल आपको दिखेगी, रेड कलर, रेड सॉइल आपको क्या कहते हैं पिंक कलर में, जैसे बॉटम पोर्शन में जो सी कोस्टल एरियाज़ में होती है, ठीक है, गोवा, महाराष्ट्र वाली साइड में, इधर तमिलनाडु, केरला वाली साइड में, थोड़ी उड़ीसा में, ठीक है, थोड़ी इधर नॉर्थ एंड ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है, यहाँ पाई जाती है। लेटराइट सॉइल, दिस सॉइल इज़ नॉट नेचुरली फर्टाइल बट हैज़ टू बी ट्रीटेड विद फर्टिलाइजर्स टू रेंडर इट कल्टिवेट, ठीक है, लेकिन ये नेचुरली कोई फर्टाइल नहीं होती, लेकिन इसे फर्टाइल बनाने के लिए इसमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड ऐड किए जाते हैं। इट इज़ सूटेबल फॉर कल्टिवेटिंग जूट, ठीक है, जूट की प्रोडक्शन के लिए, फोडर क्रॉप जिससे एनिमल्स वगैरह फूड खाते हैं, ठीक है, या ब्रिक मेकिंग, ईंटें वगैरह बनाते हैं, ठीक है। इस कौन सी सॉइल होती है, लेटराइट सॉइल, ठीक है, जो ये थोड़ी सी लाइट रेड कलर में, ठीक है, इधर ये महाराष्ट्र, गोवा वाली साइड में नीचे, ठीक है, बीच बीच में इंडिया के पार्ट्स में कई जगह ये सॉइल पाई जाती है, ज़्यादा ये सॉइल इंडिया में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है एरिड एंड सैंडी सॉइल, दिस सॉइल इज़ फाउंड इन द ड्राई एंड डेजर्ट रीजन्स ऑफ राजस्थान, ये तो सीधा ही आपको येलो कलर में दिया हुआ है यहाँ पे,
डेजर्ट रीजन्स में पाई जाती है, ठीक है, राजस्थान वाले एरिया में। हाँ जी, इट इज़ लो इन ह्यूमस एंड मॉइस्चर कंटेंट, इसमें ह्यूमस डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर तो बहुत ही कम होता है, ना ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है सॉइल में, बट कैन बी मेड कल्टिवेबल विद एडुकेटेड इरीगेशन। अगर इसे कल्टीवेशन के लिए यूज़ करना है तो इसे प्रॉपर इरीगेशन करनी पड़ेगी, इसमें प्रॉपर वाटर की सप्लाई देनी पड़ेगी, तभी हम इस पर कल्टीवेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द माउंटेन सॉइल, इट इज़ यूजली शैलो, शैलो मतलब ये थोड़ा क्या कहते हैं, इसकी ग्रिप बहुत स्लो होती है, इसकी मतलब होल्डिंग सॉइल की क्या कहते हैं बहुत लूज़ होती है, ठीक है, ट्रीज़ या कोई भी क्रॉप्स को होल्ड नहीं कर सकती ज़्यादा। फर्टिलिटी इज़ लोअर इन दिस स्टीपर पार्ट्स, ठीक है, ये माउंटेन रीजन पे होते हैं जहाँ पे स्टीप होती है, मतलब थोड़ी डीप में जाती है, वहाँ पे फर्टिलिटी सॉइल की कमज़ोर होती है, बट इट इज़ हायर इन द फ्लैटर पार्ट, जहाँ पे इसकी स्लोप कम हो जाती है, वहाँ पे इसकी क्या कहते हैं फर्टिलिटी रीगेन हो जाती है, हाई हो जाती है, ठीक है। मैनी प्लांट्स हैव अडेप्टेड टू दिस सॉइल मेकिंग एग्रीकल्चर पॉसिबल, कुछ ऐसे प्लांट्स की प्रोडक्शन इस सॉइल पे होती है जिससे क्या कहते हैं एग्रीकल्चर इस पर पॉसिबल है, कुछ खास टाइप की प्लांट्स की प्रोडक्शन की जाती है, ठीक है। ये आप देख सकते हो जो डार्क रेड कलर में JNK वाली साइड में हिली रीजन्स में होती है, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स वगैरह में जहाँ पे हिल्स हैं, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट सी कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को किस तरह कंजर्व करते हैं, पहले ये देखेंगे सॉइल कैसे डिग्रेडेड हो रही है, और उसके बाद उसमें कुछ स्टेप्स देखेंगे सॉइल को कंजर्व करने के। when agents of the erosion like water, wind, ice or the gravity displaces the upper layer of the soil, it is called soil erosion। जब कुछ इरोजन के क्या कहते हैं एजेंट्स है, जैसे विंड, वाटर, आइस, ग्रेविटी, डिस्प्लेसेस मतलब अपर लेयर जो टॉप सॉइल है उसको बहा के ले जाते हैं, उस चीज़ को कंसेप्ट को क्या कहते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन लीड्स टू दी लॉस ऑफ फर्टिलिटी, ये सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत कम कर देता है, एज इट रिमूव्स द अपर लेयर ऑफ द layers of the soil and that contains the organic matter and nutrients and exposing the subsoil। जब जिन उस लेयर को पूरा कौन सी लेयर्स को ले जाते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, और सब सॉइल को एक्सपोज कर देती है, ठीक है, जो मेन प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं उसे एक्सपोज कर देती हैं, तो जिससे क्या कहते हैं सॉइल की फर्टिलिटी प्रॉपर मेंटेन भी रहती, ठीक है। सॉइल इरोजन इज़ वन ऑफ द बेसिक कॉजेज ऑफ द सॉइल डिग्रेड, ये सॉइल इरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे सॉइल की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ओवर ग्रेजिंग या ओवर कल्टिवेशन, अगर कोई पशु ज़्यादा ओवर ग्रेड करते हैं, ज़्यादा ग्रेजिंग करवाई जाती है, कल्टीवेशन क्रॉप की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की जाती है, फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट को ज़्यादा सॉइल में क्या कहते हैं दबाया जाता है, फर्टिलाइज़र्स और या डिफॉरेस्टेशन, ट्रीज़ की कटिंग की जाती है, ये कुछ अदर कॉजेज हैं जिससे सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड होती है, ख़त्म होती है, ठीक है, लॉस करते हैं। वी कैन टेक सम स्टेप्स टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ दिस एंड टू कंजर्व द सॉइल, कुछ स्टेप्स लिए गए हैं नीचे जिससे क्या कहते हैं सॉइल की डिग्रेडेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्लियर। नाउ सी मेथड्स ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन, कौन से हैं। फर्स्ट इज द मल्चिंग। Mulching is done by the covering the bare grounds between the plants with a layers of the organic matter like straw, peat. This prevents the loss of the moisture from the soil. मल्चिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कोई बेयर ग्राउंड जहाँ पे बिल्कुल भी कोई ट्रीज़ नहीं होते, वहाँ पे क्या कहते हैं एक ऑर्गेनिक मैटर की क्या कहते हैं बिछाया जाता है, जैसे तूड़ीज़ वगैरह होती हैं, स्ट्रॉ या पीट। इससे क्या होता है जो मॉइस्चर सॉइल से नहीं जाता, सॉइल अपना मॉइस्चर रीगेन कर लेती है, इससे क्या कहते हैं सॉइल इरोजन प्रिवेंटेड रहती है और सॉइल की क्या कहते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी रिटेन रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है कंटूर बिल्डिंग। कंटूर बिल्डिंग या कंटूर बैरियर्स इज द प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग बैरियर्स कॉल्ड बंस अक्रॉस द स्लोप्स, ये माउंटेन रीजन्स पे ज़्यादा होती है, स्लोप्स पे बंस या बैरियर्स बनाए जाते हैं। दिस बंस फॉलो द कंटूर शेप्स, ये शेप्स में होते हैं कंटूर की शेप्स में, मतलब स्टीप्स के आगे कुछ बंस लगा दिए जाते हैं, स्पीड ब्रेकर टाइप, ठीक है, ट्रेंचेस लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है
सॉइल जो रेनी सीजन में सॉइल क्या कहते हैं अपने वाटर नीचे नहीं जाने देती, ठीक है। ये जो बैरियर्स होते हैं सॉइल से पानी मतलब नीचे फ्लो नहीं करने देती, सॉइल अपने वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को रिटेन करके रखती है, ठीक है। दिस दे प्रिवेंट द विंटर इरोजन्स बाय कीपिंग द सॉइल मॉइस्ट। जब भी कोई भी विंड्स चलती हैं, हवा चलती हैं, वो सॉइल को वहाँ से पानी मतलब वहाँ से ख़त्म नहीं करती, सॉइल को मॉइस्ट रखती हैं, हमेशा गीला रखती हैं। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टेरेस ऑन दिस स्टीप स्लोप्स टू ग्रो क्रॉप्स। जहाँ पे ये भी माउंटेन रीजन्स में होती हैं, जहाँ पे कोई स्टीप स्लोप्स होती हैं, ज़्यादा गहरी मतलब इस स्लोप्स होती हैं, वहाँ पे कुछ टेरेसेस बनाए जाते हैं जहाँ पे क्रॉप्स की प्रोडक्शन की जाए। जैसे नॉर्मली हमारे घरों में टेरेसेस होते हैं, वहाँ ऐसे ही माउंटेन रीजन पे जहाँ पे स्टीप स्लोप्स होते हैं वहाँ टेरेस बनाए जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स की ग्रोथ की जाती है। इस चीज़ को क्या कहते हैं, टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग हेल्प्स दी कंजर्व द सॉइल बाय प्रिवेंटिंग रेन वाटर फ्रॉम कैरिंग अवे द सॉइल। ये अगर कभी रेन वाटर होती है जिससे क्या रेन वाटर को कंजर्व करती हैं, जिससे सॉइल वहाँ से नहीं जाती, मतलब बहती नहीं है, सॉइल को वहीं कंट्रोल करके रखते हैं, भी सॉइल को नीचे आने नहीं देते, ठीक है। इस मेथड को क्या कहते हैं, टेरेस फार्मिंग। क्रॉप रोटेशन, सीड टेरेस फार्मिंग यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड में दिया हुआ सपोर्टिंग पैडी, ठीक है। ये वीट राइस वगैरह की जो प्रोडक्शन होती है यहाँ पे टेरेस फार्मिंग के थ्रू की जाती है माउंटेन रीजन पे। फिर है क्रॉप रोटेशन, soil can be conserved by growing different crops in succession in the same field to prevent the fertility of the soil. This is known as crop rotation. क्रॉप रोटेशन क्या होता है, अगर जब किसी एक क्रॉप की प्रोडक्शन हो जाती है, फिर उसके बाद जब उस क्रॉप को काट लिया जाता है तो फिर उसके बाद उसी सेम फील्ड पे किसी और क्रॉप की प्रोडक्शन की जाए, जिससे क्या होता है सॉइल की फर्टिलिटी रीगेन होती रहती है और उससे सॉइल की क्या कहते हैं कंजर्वेशन रहती है, और जिससे क्या कहते हैं सॉइल इरोजन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम पड़ता है। इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। मतलब डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं सेम फील्ड पे सक्सेशन में, एक सीज़न में कोई और, दूसरे सीज़न में कोई और, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है शेल्टर बेड्स। In the coastal या dry regions where the winds can blow away the topsoil, rows of the trees are planted to act as a shelter beds, ठीक है। जहाँ पे जैसे कई ड्राई रीजन्स या कोस्टल रीजन्स होते हैं जैसे सी एरियाज़ वाले, वहाँ पे टॉप सॉइल अगर विंड्स ब्लो करती हैं तो वो सारी टॉप सॉइल को अपने साथ बहा के ले जाते हैं। वहाँ के ट्रीज़, रोज़ ऑफ द ट्रीज़, मतलब ट्रीज़ को रोज़ में प्लांट किया जाता है, जिससे क्या कहते हैं वो क्या एक्ट करती हैं एज ए शेल्टर बेड्स। शेल्टर बेड्स का मेन पर्पस क्या होता है, वो फोर्स को ब्रेक करती हैं, अगर विंड ब्लो करेगी तो उसकी फोर्स को ब्रेक कर देते हैं, और जिससे क्या कहते हैं सॉइल इरोजन की प्रिवेंशन होती है, और सॉइल अपनी टॉप मोस्ट लेयर्स या क्या कहते हैं पेरेंट मटेरियल को बहा के नहीं ले जा सकते और अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए शेल्टर बेड्स इंपॉर्टेंट मेथड है सॉइल कंजर्वेशन का। यहाँ पे देखो ट्री इज एक्टिंग एज दी शेल्टर बेड, यहाँ पे पिक शो हुई है लेफ्ट साइड में बॉटम में देखो। लास्ट मेथड है प्लगिंग इन एरियाज विदाउट ट्री कवर, जहाँ पे ट्रीज बिल्कुल भी नहीं है। सरफेस रन ऑफ ऑफन कैरीज अवे दी टॉप साइड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डीप चैनल्स कॉल्ड गलीज। जहाँ ट्रीज बिल्कुल नहीं होते, अगर कभी भी पानी का रन ऑफ होता है, कभी भी बहता है, तो उससे टॉप सॉइल को उड़ा अपने साथ ख़त्म कर देता है, लेके चला जाता है, और डीप चैनल्स बन जाते हैं, गलीज बन जाते हैं, मतलब खड्डे टाइप बन जाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े चैनल्स बन जाते हैं, डीप होते हैं। इफ़ अनचेक द गलीज कैन ग्रो एंड डिस्ट्रॉय द लैंड। अगर इन्हें चैनल्स को या गलीज को चेक नहीं करेंगे तो ये बढ़ते चले जाते हैं और सारी लैंड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अगर इसे प्रिवेंट करना है तो गलीज आर टू बी प्लग विद हैवी पीसीज ऑफ द रॉक। इन गलीज में रॉक्स के ज़्यादा इन्हें प्लग करना चाहिए, मतलब रॉक से भर देना चाहिए, ठीक है, टू स्लो डाउन दी फ्लो ऑफ द वाटर। जिससे वाटर अगर ये गलीज में रहेंगी, अगर रॉक्स नहीं डालेंगे तो पानी इसमें से बह के नीचे चला जाएगा। अगर रॉक्स रहेंगे तो यहाँ से पानी ईजिली नीचे नहीं जाएगा, पानी यहीं रहेगा, जिससे क्या कहते हैं सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। दिस मेथड ऑफ द सॉइल लॉस इज कॉल्ड प्लगिंग। इससे इस तरह जब सॉइल की हम फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं इस मेथड के थ्रू,
that method is known as plugging. So we have covered this today, the soil एज ए नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। आज हमने सॉइल के बारे में पढ़ा। सॉइल के बारे में पहले पढ़ा सॉइल होती क्या, उसके बाद हमने सॉइल के स्ट्रक्चर पढ़े, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल को डिस्कस किया था। देन वी हैव टू डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉइल जो इंडिया में पाई जाती है, ब्लैक सॉइल, लेटरेट सॉइल, ठीक है, लुवियल सॉइल एंड एक्सेट्रा। कुछ और सॉइल्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने कंजर्वेशन पढ़ी, पहले पढ़ा किस तरह सॉइल्स का क्या कहते हैं, क्या क्या कॉजेज है जिससे सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है। फिर उसके बाद हमने कुछ मेथड्स पढ़े जिससे हम सॉइल की क्वालिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें से क्या क्या आ रहे थे, हमने पढ़े थे कंटूर बिल्डिंग, ठीक है, मल्चिंग, ठीक है, टेरेस फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, शेल्टर बेड्स, प्लगिंग। सो विद दिस वी हैव completed 2 natural resources, land and soil, and one of the natural resources left that we will do in the next class, that is water. So if you have any doubt you can ask, and so kindly prepare for your Thursday's test, that is short question and long question of the geography chapter first, resources. Thanks and have a nice day.